Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to explore one of the most, or I would say two of the most fascinating topics, that are gel electrophoresis and DNA fingerprinting. So I have clubbed these both topics because somewhere they are interrelated and somewhere we can connect these topics to each other. So I have clubbed these two topics together. But if you want to understand each topic in immense detail, please do let me know below in the comments section. Okay. So before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to my channel. Okay. So what is like, why have I included these two topics together? Why these two topics only? So see, these tools, if you know, have completely transformed the field of forensic science, medical diagnostics and genetic research as well. Okay. So by the end of this video, I am expecting you to have a great clarity about how scientists separate DNA fragments, how those fragments can be used to identify individuals. That's why I have clubbed these two topics. So why and how, you'll get the clarity of both of these questions. Okay. Now to start with, we will start with introduction to DNA analysis. So see, DNA analysis होता क्या है? हर organism के पास अपनी एक genetic identity होती है, and that genetic identity, that genetic makeup is composed of DNA, right? Mainly DNA. There are other components as well, but the main component of the main genetic component of any organism, for that matter, mainly every organism, is DNA, right? It is also known as the blueprint of anybody's life, right? And everybody has DNA. Okay. Simpler to complex organism, everybody has DNA. So by studying DNA, अगर हम DNA, so if you want to study, like different types of organism or different species of organisms, and you want to compare both of them, you want to compare with them with each other, what do you have in similar? You have DNA in similarity. Similarity as in that both the species have DNA in common. You can compare that DNA to each other. You can study or analyze DNA for any purpose, right? There are so many applications for that. We'll study that later. सो डीएनए को स्टडी करके साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिक मेकअप समझ सकते हैं एक इंडिविजुअल का, डिजीज डिटेक्ट कर सकते हैं जो भी उस ऑर्गेनिजम्स को है या होने के चांसेस हैं इन द फ्यूचर, एंड इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करा जा सकता है. सो व्हेन आई से आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, दैट रेफर्स टू इन द सीन ऑफ क्राइम और मर्डर, जहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट से या कुछ ऐसे पर्टिकुलर हेयर स्ट्रैंड से या anything which has been left on the scene of crime. तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की मदद से जहाँ से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन सम और द अदर वे, उससे हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय मैचिंग द डीएनए विद द accused or whatever we have found. So दो important techniques, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि डीएनए को सेपरेट करने के काम आती है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के काम आती है, एंड देन कम्स द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम वो फ्रेगमेंट्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं एक यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल बनाने के लिए, समझने के लिए. ओके, सो दैट इज हाउ दीज टू टेक्निक्स आर क्लब्ड. Now, what is electrophoresis or what is gel electrophoresis? See, gel electrophoresis is a laboratory technique. So it's nothing but a laboratory technique जिसको use किया जाता है to separate DNA, to separate RNA, to separate proteins. So ये जो genetic makeup होता है individual का, उसको separate करने के लिए हम ये सब चीजें use करते हैं. ठीक है. अब किस बेसिस पे आप उसे सेपरेट करते हो? आप उसे साइज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हो उस मॉलिक्यूल की. उस मॉलिक्यूल पे चार्ज कैसे है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव मॉलिक्यूल और नेगेटिव मॉलिक्यूल, उस बेसिस पे आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप उसे सेपरेट कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो. सो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने की टेक्निक होती है, दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. As simple as that. Okay, now the molecule can be DNA, it can be RNA, it can be protein as well. It is segregated based on their size and charge. Now
Imagine, I'll give you an example. So imagine pouring a mixture of colored beads of different sizes through a sponge, right? अगर आप कलर्ड बीड्स का मिक्सचर स्पॉन्ज के अलग अलग साइजेस के वो बीड्स होने चाहिए, आप उसको स्पॉन्ज के थ्रू पोर कर रहे हो. सो जो स्मॉलर वंस हैं वो तो फटाफट पास हो जाएंगे, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो लार्जर वंस हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्टक हो जाएंगे. नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज आपका जो स्पॉन्ज है उसमें जितना स्पेस है उतनी साइज का मॉलिक्यूल पास हो सकता है, उससे छोटा मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल से पास नहीं हो सकते. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द वेरी layman language. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क्स ऑन द एग्जैक्ट सेम आइडिया, लेकिन यहाँ पर हम बीड्स के जगह मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं. इस टेक्निक को ये जो टेक्निक है साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को अलाउ करती है टू विजुअलाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स एज बेंड्स, जिसकी वजह से इट गेट्स इजी टू कंपेयर एंड टू एनालाइज जेनेटिक सैंपल्स. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पीछे द प्रिंसिपल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री. इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होती है बिकॉज जो बैंड्स होते हैं दे हैव टू रन ऑन दी, आपके पास वो पूरा डिवाइस होता है जिसपे आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हो, उसके सैंपल्स को रन करते हो, एंड व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी टू दैट सैंपल्स, दो सैंपल्स रन बेस्ड ऑन देयर चार्ज और व्हाटएवर. सो डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरी नेगेटिव चार्ज. उनका फॉस्फेट बैकबोन होता है, इस वजह से उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स पे, जब हम डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ स्टडी कर रहे हैं, व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट, सो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रन करते हैं. ना व्हाई दे आर रनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? सी, they are possessing the negative charge due to their phosphate backbone. Now negative will go towards positive, positive will go towards negative, opposites attract. So उस तरीके से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह भागता है. जेल जो है, जो हम जेल डालते हैं, वो एक सीव की तरह एक्ट करता है, मॉलिक्यूलर सीव की तरह एक्ट करता है. तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, सीव यानी कि छलनी, उसकी तरह वो एक्ट करता है. सो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो उस पोर्स के अंदर वीव करते हुए इजीली अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो लार्जर वंस होते हैं वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं. राइट, अभी वो सीव की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो फटाफट भाग जाते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है हैवी वेट है जिनका, वो पीछे रह जाते हैं थोड़ा सा. सो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, दिस रिजल्ट्स इन अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ सेपरेटेड डीएनए बैंड्स. इन बैंड्स को आप कंपेयर कर सकते हो नोन मार्कर्स के साथ. जो भी आप मार्कर होगा आपके पास, उसके बेसिस पे ही आप रिसर्च कैरी करोगे और उसके बेसिस पे ही आप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे. सो उसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो और डिटरमाइन कर सकते हो द साइज ऑफ ईच डीएनए फ्रेगमेंट. ओके, सो दैट इज हाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल वर्क्स. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेटअप? सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फर्स्ट इज जेल मैट्रिक्स. जेल मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करना है. सो जेल मैट्रिक्स जो होता है वो यूजुअली अगारोस का बनाया जाता है. अगारोस इज जेली लाइक सब्सटेंस जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे डीएनए ट्रैवल कर सकता है इजीली, इसलिए मेनली अगारोस का मीडियम यूज किया. बफर सॉल्यूशन होता है. बफर सॉल्यूशन जब आप डीएनए को इंजेक्ट करते हो ना उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, तब आप उसको बफर सॉल्यूशन भी डालते हो विच मेंटेन्स द पीएच एंड इट आल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सैंपल. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है जिसकी वजह से डीएनए जो है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड माइग्रेट करते हैं. फिर लोडिंग डाई जरूरी होती है. लोडिंग डाई इसलिए जरूरी होती है, डीएनए सैंपल में ही लोडिंग डाई ऐड की जाती है बिकॉज डीएनए हैज अ ट्रांसपेरेंट कलर, राइट? इट हैज व्हाइटिश ग्रेइश कलर. if you have seen the DNA, I don't know if you have, but if you have not, it is whitish grayish color. And जब वो अगर आप उसको रन कराओगे, agarose gel is also, it's not very whitish grayish, but yeah, it is a transparent kind of structure, you know, jelly like substance होता है, उसकी तरह दिखता है. तो अगर आप
डीएनए को रन कराओगे ऑन टू दैट सिमिलर काइंड ऑफ कलर मीडियम तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोडिंग डाई ऐड करते हैं। ग्रीन कलर या रेड कलर की वो होती है, उसको आप ऐड करते हो जब, तो वो विजिबल करती है डीएनए को, डेंसर करती है डीएनए को, जिसकी वजह से इट सिंक्स इनटू द वेल्स ऑफ द जेली लाइक सब्सटेंस अगारोस मीडियम। ओके, उसके बाद डीएनए लैडर जरूरी होता है। सो डीएनए लैडर क्या होता है? सो डीएनए लैडर इज अ सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स नोन लेंथ। आपको लेंथ पता होगी उस लैडर की, तो वो डीएनए फ्रेगमेंट्स के कुछ सेट होते हैं जिसे आप एज अ रेफरेंस यूज करते हो टू मेजर अननोन फ्रेगमेंट्स। जब आप एज आई सेड मार्कर, यू नो इन सिंपल लैंग्वेज, मार्कर होता है जो आपको पता रहता है उसका लेंथ इतना है, एंड दैट इज हाउ यू यूज टू एनालाइज द डीएनए सैंपल। आपको साइज उससे पता चलती है। सो इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के दिस इज अ फॉर्म, these forms a well orchestrated system for precise DNA separation. ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझेंगे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। So see, first is gel preparation. जेल प्रिपरेशन में क्या होता है? फर्स्ट जेल प्रिपरेशन में सबसे पहले आप अगारोस पाउडर जो होता है आपके पास, अगारोस पाउडर को आप बफर के साथ मिक्स करते हो। बफर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पीएच एंड इलेक्ट्रिसिटी यूनिफॉर्मली ट्रांसफर करे, माइग्रेट करे, इसीलिए हम बफर सोल्यूशन डालते हैं। सो हम अगारोस पाउडर को मिक्स करते हैं बफर के साथ, और हम तब तक उसे गर्म करते हैं जब तक वो डिजोल्व ना हो जाए। बफर सोल्यूशन जो है, अगारोस पाउडर जो है वो बफर सोल्यूशन में प्रॉपर डिजोल्व ना हो जाए तब तक हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, वंस वो हो जाता है, वंस वो थोड़ा पहले वो गर्म रहेगा, उसको हल्का सा आपको ठंडा करना है, लाइक बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद आप उसको पोर करते हो इनटू अ मोल्ड विद अ कोम टू फॉर्म वेल्स, जिससे वेल्स बन सकें। एक आपके पास, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस और नॉट, बट वो एक सेटअप आता है एंड देयर इज दिस कोम ऑफ डिफरेंट साइजेस। नाउ इट डिपेंड्स आप किस तरीके से सेपरेट करना चाहते हो अपना डीएनए, उस हिसाब से। सो वो कोम्ब होता है और आप उसमें अपना वेल में अपना ये वाला जो आपने बफर प्लस अगारो उसका जो मीडियम बनाया होता है उसको आप पोर करते हो थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद उस मोल्ड के अंदर, ताकि वेल्स बन जाए जहां से डीएनए, जहां पर आप डीएनए इंजेक्ट करोगे और डीएनए फिर माइग्रेट करेगा इनटू द मीडियम। तो वो चीज जेल प्रिपरेशन सबसे पहला स्टेप होता है। देन कम्स दी सैंपल लोडिंग पार्ट। सैंपल लोडिंग में आप क्या करते हो? वंस वो पूरा वेल्स बन जाते हैं, सब हो जाता है, उसके बाद आप डीएनए सैंपल्स में डाई को मिक्स करते हो, लोडिंग डाई को मिक्स करते हो और पाइपेट करते हुए उसे वेल्स में पाइपेट करते हो, आप ट्रांसफर करते हो वेल्स के अंदर। वंस दैट इज डन, उसके बाद आप जेल को सबमर्ज्ड होने देते हो इन द बफर एंड इलेक्ट्रिक करंट आप अप्लाई करते हो। उसके बाद जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके माइग्रेट होने लग जाते हैं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड। उसके बाद वो सेपरेट होने लग जाते हैं। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो फास्ट मूव करेंगे, जो बड़े बड़े हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा पीछे रहेंगे, वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करेंगे, तो वो एक अलग पैटर्न आपको दिखने लग जाता है। एंड उसके बाद द लास्ट स्टेप इज स्टेनिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो ये सब होने के बाद जब जेल इज सोक्ड इन अ फ्लोरेसेंट डाई लाइक इथिडियम ब्रोमाइड और SYBR सेफ, उसके अंदर आप उसको सोक करते हो जेल को, और आप उसे यूवी लाइट में रखकर डीएनए बैंड्स को देखते हो, उससे आपको आपका रिजल्ट समझ में आता है। सो दैट इज हाउ दिस इज डन। ओके, नाउ विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स आपके पास रिजल्ट आ गया, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है ना। हाउ विल यू विजुअलाइज? सी, विजुअलाइजेशन stage is where the science becomes art, right? You have to really understand and analyze in a proper manner, in a creative manner. Okay, सो आप यूवी लाइट के अंदर ऑब्वियसली उसको एनालाइज करते हो, एंड हर डीएनए फ्रेगमेंट ना एक ग्लोइंग बैंड की तरह दिखता है आपको। जब आप यूवी लाइट में देखोगे ना उसको, तो वो एक ग्लोइंग बैंड की तरह दिखता है। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के एकदम पास में होते हैं, और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो थोड़ा वेल्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं कि वो धीरे मूव कर पा रहे थे। डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है हर बैंड ने,
that corresponds to its molecular size, right? Because कितना ज़्यादा आप आगे भाग गए उससे डिपेंड करता है आप कितने छोटे हो, आप साइज का भी छोटा साइज है आपका, राइट? उससे वो चीज़ पता चलती है. So it corresponds to that, and so scientists and researchers often use specialized software or imaging systems in results को capture करने के लिए और analyze करने के लिए और documentation करने के लिए. So this is how we determine whether two DNA samples are identical or are they different or they are related to each other. इस तरीके से हम gel electrophoresis के method से समझ सकते हैं. What are the applications of gel electrophoresis? See, it is not just a lab routine. It is definitely a cornerstone of modern biotechnology. इसके की एप्लीकेशंस अगर मैं आपको बोलूँ तो फर्स्ट इज अगर हमें डीएनए सैंपल्स की या आरएनए सैंपल्स की क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी देखनी हो कि वो कितने अच्छे हैं क्वालिटी वाइज इंटीग्रिटी वाइज, तो हम इस प्रोसेस को इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको पीसीआर प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है सक्सेसफुली एम्पलीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप इस मेथड को डेफिनेटली कैरी परफॉर्म कर सकते हो. अगर आपको जेनेटिक म्यूटेशंस समझने या पॉलीमॉर्फिज्म्स समझना है डीएनए के अंदर, तो भी आप इस मेथड को कर सकते हो. ना हाउ विल यू अंडरस्टैंड जेनेटिक म्यूटेशन फ्रॉम दैट बैंड? जब आप उसको यूवी लाइट में देखोगे एंड जब आप अब अगर आपको ये इस एप्लीकेशन को चाहिए तो यू हैव टू यूज सर्टेन सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दो सिस्टम्स व्हिच आर आउट देयर डीएनए एनालिसिस के लिए. तो आपको समझ में आएगा इफ देयर आर सर्टेन म्यूटेशंस और देयर आर पॉलीमॉर्फिज्म्स इन द डीएनए सैंपल. उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन is separating and studying proteins in biochemical research. So all of these are some of the most important application, and one of the most important application is DNA fingerprinting, जो कि हमारा next topic भी है. That is one of the most important applications of gel electrophoresis. Now, moving forward to DNA fingerprinting. I hope gel electrophoresis is clear to you all, but if you have any doubts on this particular topic, gel electrophoresis, please do comment down below. Okay, so moving forward to DNA fingerprinting. This is just an application of gel electrophoresis, so we are going to go deep into this topic. See, DNA fingerprinting को DNA profiling भी कहा जाता है. this is a revolutionary technique जो कि आइडेंटिफाई करती है दो इंडिविजुअल्स को या इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करती है बेस्ड ऑन देयर यूनिक डीएनए पैटर्न्स. बिकॉज there are so many individuals, like millions and billions of individuals and trillions of individuals there in the world, but हर किसी का डीएनए is different. हर किसी के डीएनए में like you cannot say that somebody's DNA is same to somebody's. पेरेंट्स का डीएनए ऑफस्प्रिंग से भी completely मैच नहीं करता है. There is definitely going to be a certain difference in the DNA of every individual. Okay, so वहाँ पर वो इस फैक्टर की वजह से हम कोई भी चीज़ को हमें किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है तो we can do it by their DNA. Okay. So just as I said, just like no two people share identical fingerprints, no two individuals have the same DNA sequence, not even identical twins. Okay. Oh sorry, except identical twins. Identical twins का DNA जो है वो सेम होता है, लेकिन बाकी उसके अलावा किसी का भी DNA सेम नहीं होता है. So ये जो मेथड है it became a game changer in forensic science, जिसमें हम क्राइम सॉल्व करने में ये मेथड काम आता है. रिमेन्स अगर किसी के रह जाते हैं उसे आइडेंटिफाई करने में काम आता है. पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा काम आता है. बायोटेक्नोलॉजी में it is used for genetic mapping, biodiversity and evolutionary research as well. So definitely it has vast applications. Okay. Now principle of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting के principles क्या क्या हैं? See, DNA fingerprinting का जो principle है, it lies in specific regions of DNA known as VNT, as variable number tandem repeats. DNA fingerprinting जब आप समझते हो, उसका एक बहुत ही मेन principle है जिसके अराउंड वो वर्क करता है, टेक्निक. So the principle lies in specific regions of DNA.
डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिसे हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बोलते हैं या शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी उसको बोला जाता है, एसटीआर या वीएनटीआर। ओके, ये जो शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं ना, ये बार बार रिपीट करते हैं, छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं डीएनए के अंदर। सो ये शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स में होते हैं डीएनए के। इन ये नंबर और उसका कितना नंबर ऑफ रिपीट्स है ये वेरी करता है अलग अलग इंडिविजुअल में। फॉर एग्जाम्पल, इन एबीसी पर्सन it is going to repeat after different base pairs and it is going to repeat up to a different number of times। तो वो चीज हर इंडिविजुअल में डिफर करती है। सो जहां पर ये रीजन्स एम्पलीफाई होते हैं, एनालाइज्ड होते हैं, दे प्रोड्यूस यूनिक बैंडिंग पैटर्न्स जिसे हम जेनेटिक सिग्नेचर बोलते हैं। जब हम हर इंडिविजुअल का अगर ये चीज़ एनालाइज करें कि कितने एसटीआर हैं, कितने शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं और कितने कितने टाइम पर, यानी कि कितने कितने सीक्वेंसेस के बाद वो रिपीट हो रहे हैं, जब हम ये स्टडी करते हैं तो हर किसी का जेनेटिक सिग्नेचर अलग अलग आता है। तो भाई ये पैटर्न्स को कंपेयर करके साइंटिस्ट जो है एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं विथ एस्टॉनिशिंग एक्यूरेसी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप्स फर्स्ट एंड फोरमोस्ट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी डीएनए सैंपल हमारे पास आना चाहिए। डीएनए सैंपल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड, हेयर, सलाइवा, टिश्यू। ठीक है, उसके बाद डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। डीएनए एक्सट्रैक्ट के लिए डीएनए आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा सैंपल में से। उसके बाद आप उसको डाइजेस्ट कराओगे विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए को कट कर देती है, बिकॉज वी नीड टू स्टडी राइट। तो स्पेसिफिक रेकग्निशन साइट्स पे उसको कट करती है। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने अभी पढ़ा उसको हम रन कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें समझ में आता है कि क्या साइज के पैटर्न्स कितने हैं, उससे हमें एसटीआर वो सब समझ में आते हैं। फिर हम उसे सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं उन फ्रेगमेंट्स से। उस सदर्न ब्लॉटिंग इज आप उन फ्रेगमेंट्स को नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज के मेम्ब्रेन पे ये करते हो, ट्रांसफर करते हो और वहां पे उसको एनालाइज करते हो, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग। एंड उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है। प्रोब्स को लेबल किया जाता है फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव टैग से, मतलब जो भी आपको समझ में आया कि यार दिस इज द इम्पोर्टेंट बेस पेयर, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डीएनए, उसको आप टैग कर सकते हो फ्लोरेसेंट या कोई भी कलर्ड उससे, जिससे आपको समझ में आया आपने उसे टैग किया था। वो स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट टैग्स या जो भी चीज होती है उसको आप बाइंड करते हो टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस एंड आफ्टर दैट डिटेक्शन रिजल्टिंग जो पैटर्न आता है बेंस का, इट फॉर्म्स द डीएनए फिंगरप्रिंट विच इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। नाउ आई हैव यूज्ड वन न्यू टेक्निक इन दिस slide which is southern blotting, which I have explained in brief, but if you want a detailed explanation of this topic, please do let me know in the comments section. Okay, now what are the applications of DNA fingerprinting? See, criminal investigation सबको पता है, crime scenes में यूज होता है, paternity maternity testing है तो यूज होता है, अगर disasters में remains जो मिले हैं उसे identify करना है वो किसके हैं, क्या किस missing person के हैं, तो उसके लिए इट इज़ यूजफुल। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इट इज़ यूजफुल, क्योंकि ट्रैक किया जा सकता है कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, खत्म हो सकती है, खतरा है, और इलीगल पोचिंग बंद की जा सकती है। मेडिकल रिसर्च में तो डेफिनेटली इट इज़ यूजफुल। हेरिडिटरी डिजीजेज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स समझे जा सकते हैं, एनालाइज पढ़े जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग ऑफ दैट। So DNA fingerprinting has become a cornerstone of truth in both science and law. Okay. Now, advantages and limitations. See, pros and cons है इस टेक्निक के definitely. Pros बहुत सारे हैं, that बहुत accurate है ये टेक्निक, highly reliable है। अगर हमें इस टेक्निक से समझ में आ रहा है that this person is guilty, तो वो person फिर guilty है। बिकॉज अगर डीएनए मैच कर रहा है तो यू डू नॉट नीड एनी अदर प्रूफ टू बी शोन और टू बी प्रूव्ड।
बहुत स्मॉल सैंपल्स पे भी हो सकता है, लाइक एक हेयर स्ट्रैंड से भी डीएनए निकाला जा सकता है, तो स्मॉल सैंपल से भी मिल सकता है। क्रिमिनल जस्टिस एंड मेडिकल जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिमिटेशंस ये है कि डीएनए का हाई क्वालिटी होना ज़रूरी है, अनकंटामिनेटेड डीएनए होना ज़रूरी है, राइट? बिकॉज एक सैंपल दूसरा सैंपल कहीं भी कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, सो दैट वो डीएनए प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके, एनालाइज किया जा सके। प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज यू आर studying a blueprint or genetic makeup of individual, right? So it is going to be a little expensive. Ethical and privacy issues भी हैं, because genetic data हम मतलब मिल जाता है forensics वालों को, तो you know that data can be misused, so that is one thing. So while it is a scientific marvel, responsible use is key. Okay. Now, what are the ethical and legal considerations? So, see, with the power of DNA comes the responsibility to use it wisely, right? Because DNA जो है वो extremely personal होता है. DNA data is extremely personal. It reveals the ancestry of an individual, reveals the health risks of an individual, it reveals the identity of an individual, the complete identity of the individual. So misuse अगर इसका हुआ तो वो डिस्क्रिमिनेशन, सर्वेलांस या वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, इन सबको रिजल्ट कर सकता है। तो कहीं कहीं कंट्रीज में देर आर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कि डीएनए सैंपल्स किस तरीके से कलेक्ट किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं, एनालाइज किए जा सकते हैं। सो देर आर सर्टेन रेगुलेशंस टू दिस। एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये एथिकल पिलर्स हैं डीएनए टेस्टिंग के, विच इज इम्पॉर्टेंट। So science must always respect human rights. Okay. So yeah, to wrap up or to conclude, gel electrophoresis is the technique that separates and visualizes DNA fragments, while DNA fingerprinting uses these fragments to identify individuals uniquely. So ये जो टेक्निक है, they have revolutionized biotechnology, law enforcement and medicine, anthropology. ये जो टेक्निक्स हैं इनकी वजह से साइंस जो है अनकवर कर पा रही है हिडन ट्रुथ्स को. So this is a very beautiful technique and it has promising future prospects as well. So yeah, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Also, if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comments section. And if you have not understood anything from this video, please put your question below in the comment box. And if you want these two topics to be explained separately, you know, or maybe the DNA fingerprinting, because I've covered DNA fingerprinting in very short. So if you want a detailed explanation or version of this topic, please do let me know in the comment section. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.